Assalamu alaikum dear students. I'm Mohammad Riaz Khan with the second lecture on sensation in perception. In today's lecture, we are going to discuss what is perceptual set, how we perceive things, and then we will be turning to the visual processing, how light is being processed through our receptors and brain. So let's start with the concept of perceptual set. Perceptual set है क्या? Perceptual set is actually our mental tendencies and assumptions, our predisposition that affects the top-down processing, the perceptual processing, that what we hear, taste, feel, and see. That means कि जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम टेस्ट कर रहे हैं, इन हर एक सेंस के दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं. वन इज बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप प्रोसेसिंग, एंड सेकंड इज टॉप डाउन प्रोसेसिंग. बॉटम अप प्रोसेसिंग में ये होता है कि जो स्टिमुलस हम देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, व्हाटएवर इट इज, सो वो रिसेप्टर सेल्स के जरिए रिसीव होती है. उसके बाद कुछ न्यूरॉन्स को वो एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट करते हैं, और उन एक्टिवेशन के बाद जो है वो दिमाग तक पहुंच जाती है, ब्रेन तक पहुंच जाती है. एंड देन द ब्रेन स्टार्ट इट फंक्शनिंग. जो प्रीवियस हमने मेंशन किया, दैट इज बॉटम अप अप्रोच. इसके बाद ब्रेन उसको मीनिंग देता है, और मीनिंग कैसे देता है कि उसके पास प्रीवियसली कुछ चीजें पड़ी हुई है, स्टोर है, उस स्टोर्स के मुताबिक, उस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन मेमोरी के मुताबिक अब वो देखता है कि अगली चीज क्या है. सो उसको हम कहते हैं टॉप डाउन प्रोसेसिंग. सो परसेप्चुअल प्रोसेस इज एक्चुअली the set of those mental tendencies and assumptions are predisposition जो हमारे इस टॉप डाउन प्रोसेसिंग को अफेक्ट करती है, and that is based on our expectation, context, motivation, and emotions. So, for example, in the given picture, there is something written on the ground. One is saying it is 8. Can you figure 8? The another one is saying it's something infinity. Because it seems like इसका जो शक्ल है वो infinity की जो symbol हम use करते हैं वो है. दूसरा कहता है कि ये wave की तरह है, क्योंकि इसमें जो curves है, it's like verb. Pretzel है, DNA के structure की तरह है. So everyone is talking about because he has certain mental tendencies and certain assumptions. और वो assumption उन्होंने देख तो सब एक तरह से रहे हैं, लेकिन देखने के बाद उसको जो meaning assignment है, उसको जो पहचानना है, उसको जो feel करना है, वो according to उसको जो affect कर रहा है वो हमारी mental tendencies हैं. और वो how it is determines, what determines our perceptual skills. जो हमने schema की बात की थी, schema organize and interpret unfamiliar information through experiences. Our pre-existing schema influence top-down processing of ambiguous sensation interpretation, including gender stereotypes, etc. So हमारे जहन में पहले से कुछ स्कीमा बने हुए थे, और जो हमने डिस्कस किए थे इन डेवलपमेंट थ्रू लाइफ स्पेन में, कि स्कीमा उस वक्त बनते हैं जब वी आर इन इन्फेंसी. इन्फेंसी के वक्त जो है हमारे स्कीमा डेवलप होते हैं. स्कीमा इज द कंटेनर about certain thing, about certain phenomenon, about certain events. उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जुड़ती रहती है, और वही एग्जिस्टिंग स्कीमास जो हैं वो हमारे फिर टॉप डाउन अप्रोच को, अगर नई चीजें भी हैं जो स्कीमा से बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका या उस जैसी नहीं है, लेकिन हम थ्रू एकोमोडेशन और एसिमुलेशन, जो वक्त हमने डिस्कस की थी, ये these are the two component or two types जिसकी वजह से हम accommodate करते हैं, assimilate करते हैं information को, and then we make sense of the world. So that is through our pre-existing schema, जो कि उसके help से हम ये करते हैं. For example, there is one of the sentence written that there are 2 errors in the title of this book. Okay, now it's up to the viewers, students, देख लें कि इसमें से 2 error कौन से हैं. As we see कि जी
जैसे ही हमने देखा है, हमने टाइटल बता रहा है कि देयर आर टू एरर्स, सो हमारे जो सेंसेशन परसेप्शन, अब हम एरर्स की तरफ देखना शुरू कर जाएंगे. सो इट्स अप टू यू, वट एवर यू फील, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स के जी आपकी नज़र में कौन से दो एरर्स हैं. Henry David Thoreau said in 1860 that what we hear and apprehend is only what we already have know. Or it the other way around, कि जो हम सुनते हैं और जो उससे समझने की कोशिश करते हैं, जो हम कुछ देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, वो प्री डिटरमिनेटली हमने 50% 50% जो है वो पहले से फिक्स किया हुआ कि ये इस चीज से रिलेटेड है. दैट मीन्स कि हमारे जो स्कीमाज है, हमारे जो अपनी मेमोरी है, वो मेमोरी इसको अफेक्ट कर रही है हमारे नोइंग प्रोसेस को, हमारे इस टॉप डाउन अप्रोच को. So still we continue with the perceptual set, that how culture or context have an influence on our perceptual set. What is that a given stimulus may trigger different perception because of the immediate context. In the given picture, जिसमें से एक लेडी बैठी हुई है और साथ में कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं. अगर ये a study was carried out through this picture, और उनसे कहा गया था कि आप इनको इंटरप्रेट करें व्हाट यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर. सो ईस्ट अफ्रीकन का जवाब ये था कि ये जो कुछ लेडी है, शी इज अ सॉर्ट ऑफ विच डॉक्टर, चीफ ऑफ द ट्राइब, जिसके सर पे कोई ग्लास का या कोई और चीज तरह की डब्बा पड़ा हुआ है जिसको उसने बैलेंस किया हुआ है, विच इज हर एक्सपर्टीज. Because the East Africans are not familiar with the windows and the building things. When the same was being interpreted in the by the Westerners, वेस्टनर्स जो हैं, वेस्ट वाले जो हैं, उन्होंने इनको इंटरप्रेट किया कि जी एक लेडी बैठी हुई है एक कमरे के अंदर, कुछ लोग उनके साथ बैठे हुए हैं और बाहर की तरफ एक विंडो खुली है जहां से बाहर के सीन नजर आ रहा है. So that is how things are different, because you are familiar with certain things, you have some certain schemas, और उस schemas के नतीजे में आप उसको interpret करते हैं. In another picture, in the upper corner of the right, on the right side, there are squares. अब पहले स्क्वेयर्स में से 5 स्क्वायर यहाँ पे भी हैं, दूसरे में भी 5, सॉरी वो है, पहले में 5 स्पेयर्स हैं और दूसरे में भी 5 स्पेयर्स हैं. अब हम देख ले सर्कल्स हैं, वो उनको अगर हम देख ले तो पहले वाले 4 जो हैं उसमें 4 बड़े हैं और जो दरमियान वाला वो छोटा है, और दूसरे में दरमियान वाला सबसे बड़ा है और बाकी छोटे. अब वी आस्क अ पर्सन, और हमें कहें कि एडवांस हमें बता दे कि जिसमें से बड़ा जो दरमियान वाला है, दोनों में जो दरमियान वाला है, दरमियान वालों में से बड़ा कौन सा है. तो ऑटोमेटिकली चूंकि फर्स्ट में हम बड़े स्पेयर्स के दरमियान छोटा स्पेयर देख रहे हैं और दूसरे में छोटों के दरमियान बड़ा स्पेयर देख रहे हैं, सो वी ऑटोमेटिकली से इसके जो छोटों में जो बड़ा वाला नजर आ रहा है, दैट इज द बिगर वन. सिमिलरली लोअर कॉर्नर में जो देखें तो सेरेना विलियम इज crying. Sort of, if we see to the one picture, it's thing we may think this is something very she is displaying angriness, ये जी एंगर डिस्प्ले कर रही है वो. लेकिन जब हम पूरे उस कॉन्टेक्स्ट में उसको देख लें, so that means she is celebrating. So that's how context is affecting in our culture, is affecting our perceptual sets. पहले पिक्चर में सेरेना विलियम्स के हम देख रहे हैं कि देयर इज हर पिक्चर, हर फेस पिक्चर जिसमें हमें बाकी चीजें नजर नहीं आ रही, तो हमें लगता है कि शी इज एंग्री एट सम ड्यू टू समथिंग. लेकिन जब हम दूसरी उसकी फुल व्यू देखते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट भी हमें समझ में आता है, सो वी सी के शी इज सेलिब्रेटिंग, माइट बी शी हैव won the game or the set or as a point. So हमारे परसेप्चुअल सेट को हमारी मोटिवेशन और इमोशंस भी अफेक्ट करते हैं. Motives gives us energy as we work
toward a goal like context, they can bias our interpretation of neutral stimuli. कि जिस मोटिव से हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, वो मोटिव्स भी हमारे जो देखना, जो प्रोसेसिंग है, उस प्रोसेसिंग को बाइस्ड कर सकते हैं. इसी तरह इमोशंस कैन मूव आवर परसेप्शन इन वन डायरेक्शन एंड अनदर. Here are certain example given कि जी किस तरह मोटिव्स या इमोशंस जो हैं वो हमारे परसेप्चुअल प्रोसेस को, परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं. Walking destination look further away to those who have been fatigued by prior exercise. चलते जा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि वो मजीद वो थकावट महसूस कर रहे हैं, सो उनको जो अपनी डेस्टिनेशन है जो वो दूर दिखाई देते, एज कम्पेयर टू दोज हु आर द न्यू कमर्स, और उन्हें भी चलना स्टार्ट किया. फॉर देम इट्स द नियरर वन. A hill look steeper to those who are wearing a heavy backpack. जब आप फेरी मेडोज फॉर एग्जांपल जा रहे हैं और आप उस ट्रेक पे हैं और ट्रेक में आपके साथ जो बैक पैक है वो अच्छा सा भारी है, सो यू विल बी थिंकिंग ये तो बहुत ज्यादा स्टीपर है, बहुत ज्यादा जो स्लीप है, वो स्टीप है, वो बहुत ज्यादा है. इस तरह as with so many of life's challenges, a hill also seems less steep to those with a friend besides them. कि एक बंदा जिसके साथ बहुत से वो जा रहा है, एक अकेला बंदा जा रहा है, एक के साथ कंपनी में कोई फ्रेंड भी है हाइकिंग में वगैरह, तो जो स्टीपनेस है वो इतनी ज्यादा उसको फील नहीं होती. इस तरह hungry college students were found to be more likely to perceive ambiguous structure as being food. और इस तरह अगर हम बच्चों को बर्गर्स दे दें, सॉरी फ्राइज दे दें, फ्रेंच फ्राइज दे दें, तो मैकडोनल्ड के बैग में उन्हें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है अगर उस मैकडोनल्ड के बैग में डाल के, शॉपर में डाल के उनको दे दें, और अगर जस्ट वाइट बैग में डाल दें. इसी तरह हम लोकल एग्जाम्पल में कहते हैं, शायद हमारे बड़े अच्छे गुजरे हैं, उन्होंने कहा कि हमने एक मद कलंदर से पूछा कि क्या है हिकमत महरुमा, उसने कहा कि हमें तो नजर आती हैं रोटियां. बिकॉज the person whom he asked what is this, the astrological secrets in these sun and moon, तो उसने कहा कि भाई मुझे तो ना सूरज नजर आता है ना जो है तो चांद नजर आता है, मुझे तो दोनों रोटियां नजर आ रही, एक फाइन आटे की है और एक सादा आटे की है, बिकॉज द पर्सन वाज हंग्री. या हमारे पश्तो में एक और जो प्रोवर्ब है कि किसी ने भूखे से पूछा कि 2+2 कितने होते हैं, उसने कहा जी 4 ब्रेड्स, 4 रोटी. Okay, because he was also hungry. So that is the motive, are your emotions, which is also making biased your perceptual set as well. Now we are going to discuss the light. So light stimulus, उससे पहले कुछ terms हमें देखने की जरूरत है. एक है wavelength. Wavelength जो है वो distance from the peak of one light or sound wave to the peak of next. Electromagnetic wavelengths vary from short blips of cosmic rays to the long pulses of radio transmission. So wavelength जो है वो एक वेव के एक पीक से दूसरे पीक तक का जो एरिया है वो कहलाता है. Hue क्या है? Hue is dimension of color that is determined by the wavelength of light, what we know as the color names blue, green and so forth. So उसकी जो wavelength जितनी ज्यादा होगी उसकी वजह से जो उसके कलर में चेंजेस आ रहे हैं उसको हम hue कहते हैं. Intensity is the amount of energy in a light wave or a sound wave जो उसके ब्राइटनेस को या लाउडनेस को शो करती है. इस तरह रेटिना जो है वो जो हमारे आंख का पूरा हिस्सा है, अगले स्लाइड्स में हम वो डिटेल से देख रहे हैं. लाइट सेंसिटिव इनर सरफेस ऑफ द आई, जहाँ पे पूरी कहानी बनती है विजुअल्स की, उसकी अकोमोडेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए आईज के जो लेंस हैं वो शेप बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स की रेटिना पे. दिस इज द लाइट स्टिमुलस. लाइट्स हमने कहा है कि 7 कलर्स हैं जो कि हम देख सकते हैं. विबग्यार जिसकी एक्रोनिम है, एंड दिस इज वेरी tiny piece of the multiple spectrum, broad spectrum,
What is seen as light is the only a thin slice of the broad spectrum of electromagnetic energy. For example, अगर हम wavelength की बात करें, so 10⁻23 जो है वो रेडियो और टीवी के ट्रांसमिशंस के वेव्स होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी तरफ जो है 10⁻12 जो गामा रेज हैं एक्सेट्रा, इसके बीचों बीच बिल्कुल एक नेगेटिव नैनोमीटर्स में और एक दूसरी तरफ से पॉजिटिव या मीटर लेंथ में। सो इसके बीचों बीच एक बहुत थिन स्लाइस स्पेक्ट्रम का बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं या वेब गया, जिसमें से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड पाए जाते हैं, जो कि 700 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक इसकी स्ट्रेंथ पाई जाती है। द पोर्शन विजिबल टू ह्यूमन एक्सटेंड फ्रॉम द ब्लू वायलेट टू द रेड लाइट, जैसे हमने बता दिया कि जी वायलेट से लेके रेड तक, रेड से जो नीचे होते हैं वी कॉल दोस इंफ्रारेड, और जो वायलेट्स के अबाव होते हैं वी कॉल दिस अल्ट्रा वायलेट रेज। जी, after entering the eye and being focused by the lens, light energy particles strike the eye inner surface, the retina. क्योंकि हमने कहा कि जो फोटॉन्स हैं, जो लाइट के एटम्स होते हैं, वो स्ट्राइक करते हैं हमारे आई के जो इनर सरफेस है, रेटिना पे। The perceived hue in a light depends on its wavelength. Its bright depends on its intensity. जो हम previous discuss कर चुके हैं कि hue जो brightness और intensity है वो कैसे measure होती कैसे है? Let's see that as well. Waves vary in wavelength, distance between successive peaks, frequency कितने number of circles ये जल्दी पूरे करते हैं, amplitude उसकी जो लंबाई है एक highest level तक। So short waves have high frequency, bluish colors होते हैं, long waves जो हैं वो उसकी low frequency होते हैं, reddish color के होते हैं, great amplitude bright colors के होते हैं, और small amplitude जो है वो dull colors के होते हैं। But how eye is perceiving this? So on the left there is a general, a very macro, you can say macro picture of the eye, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, दैट इज द जो फ्लेम है, फ्लेम शमा है और शमा की फ्लेम के साथ है। तो ये जैसे ही आंख उसे देखती है, सो इसका एक उल्टा इमेज बनता है पॉइंट ऑफ सेंट्रल फोकस पे। अब पहले ये बताया जाता था कि ये जो उल्टा बनना है तस्वीर का, पिक्चर का, इसको इसी तरह लेके फिर जो है वो दिमाग प्रोसेस करता है। बट नाउ द करंट डिस्कवरी इज दैट इट इज नॉट हैपनिंग लाइक दैट। यहाँ पे तस्वीर तो बन जाती है रेटिना पे, लेकिन ये एज इट इज नहीं जाती, ये डिसइंटीग्रेट होके पीसेस में चली जाती है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज लाइट एंटरिंग द आई triggers chemical reaction in rods and cones. Rods and cones की हम आगे डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी। At back of retina, कि जैसे लाइट एंटर हो जाती है केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं रॉड्स और कॉन्स में, और उसके बाद केमिकल रिएक्शन टर्न्स इन टू एक्टिवेट बायोपोलर सेल्स। बायोपोलर सेल्स को वो एक्टिवेट करते हैं, बायोपोलर सेल्स जो हैं वो देन एक्टिवेटेड गैंग्लियन सेल्स whose combine oxygen to the optic nerve, जिसके ऑक्सीजन जो है वो ऑप्टिक नर्व में पड़े होते हैं और वहां से वो थैलेमस तक पहुंचते हैं, और जिसकी वजह से वो जो हमारा दिमाग है वो उन चीजों को प्रोसेस कर लेता है। पुट इट सिंपल, इफ वी से कि लाइट एनर्जी पार्टिकल्स आते हैं रेटिना में, आते हैं रेटिना में से ये रॉड्स और कॉन्स में आते हैं। अब रॉड्स क्या है? Those are retinal receptors that detect black, white and gray, necessary for peripheral and twelfth vision when cones don't respond. ये वो रेटिनल रिसेप्टर्स हैं, विजुअल रिसेप्टर्स हैं, जो कि ब्लैक, वाइट और ग्रे के कलर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, और ये आप समझ लें कि विदाउट लाइट भी काम इनका काम ये रिसेप्शन करते हैं। Cones on the other hand are retinal receptor cells that are
concentrated near the center of the retina and that function in daylight or well-lit condition. The cones detect fine details and give rise to color sensation. कॉन्स जो रिसेप्टर्स हैं, कॉन्स जो टाइप ऑफ रिसेप्टर्स हैं, वो डिटेल में जब अच्छे खासी लाइट हो या वेल लिट डे लाइट हो या कहीं पे भी वेल लिट कंडीशंस हो, सो वहाँ पे ये निटी ग्रिटी डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट में जाते हैं. अच्छा जी, यहाँ से आने के बाद लाइट एनर्जी ट्रिगर्ड केमिकल इलेक्शन, जैसे हमने केमिकल चेंजेस जो हैं वो पहले उसमें प्रीवियसली हमने देख लिया कि बायपोलर उसमें होते हैं. जैसे आ गया है बायपोलर केमिकल रिएक्शन स्पार्क्स न्यूरल सिग्नल एक्टिवेटिंग नियर बाय बायपोलर सेल्स. बायपोलर सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक्टिवेट कर देते हैं गैंग्लियन सेल्स को, जिनके अक्सान्स ट्विन होते हैं together like the strains of a rope to form the optic nerve. और ऑप्टिक नर्व से वो थैलेमस तक पहुंचते हैं. फिर थैलेमस तक पहुंचने के बाद थैलेमस तक ये कह देते हैं कि जी व्हाट वी आर सीइंग. अब व्हाट वी आर सीइंग इज जस्ट कि जी विजुअल्स क्या है, उसको मीनिंग असाइनमेंट जो है वो टॉप डाउन अप्रोच के जरिए होती है, जो कि हमने शुरू में बता दी, ये जो परसेप्चुअल सेट है उसमें. So vision is, that is what we said, how does the brain turn light stimuli into useful information. हमें पता तो चला जी कि लाइट की जो फोटॉन्स हैं, एटम्स है, वो आए, उन्होंने आई को स्ट्राइक किया, आई के अंदर जो है वो रेटिना के अंदर उसकी उल्टी तस्वीर बनी, उल्टी तस्वीर की जो डीकम्पोज फॉर्म में चीजें चली गई थैलेमस तक. अब थैलेमस जो है वहां से कैसे वो चल रहा है. So linkage of the optic nerve with neurons in the thalamus. फिर कलर प्रोसेसिंग होती है 2 स्टेजेस में. फर्स्ट में रेटिना के जो रेड, ग्रीन और ब्लू कॉन्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं वेरियस डिग्रीज को, क्योंकि हर जो लाइट वेव है उसकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड होता है. उसके अकॉर्डिंगली यहाँ के कॉन्स रिस्पॉन्ड करते हैं. ये जो ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी है योंग एंड हेल्महोल्ट्ज की, वो बताते हैं. जबकि ओपोनेंट प्रोसेस सेल्स, जैसे हरिंग थ्योरी कहती है, वो कहता है कि कॉन्स रिस्पॉन्स आर देन प्रोसेस बाय ओपोनेंट प्रोसेस. ओपोनेंट प्रोसेसिंग आगे हम जाके करेंगे कि वो दो अपोजिट कलर्स की कॉम्बिनेशन से हमें बताते हैं. सो यहाँ से हमें पाथवे फ्रॉम द आइज टू विजुअल कॉर्टेक्स, द गैंग्लियन ऑक्सन forming the optic nerve run to the thalamus, where there they synapse with the neurons that run to the visual cortex. और visual cortex में फिर जो है feature detection भी होती है. Nerve cells in the brain respond to specific feature of the stimulus such as its shape, angle and movement. यहाँ से हमारे पास हम dual processing भी शुरू हो जाती है जी, कि हम एक वक्त में कई चीजें देख रहे होते हैं. वी आर नॉट सीइंग ओनली दैट इट्स एन ऑब्जेक्ट. जो फॉर एग्जांपल एक फ्लाइंग बर्ड है, तो फ्लाइंग बर्ड का सिर्फ हम ये नहीं देखते कि इट्स अ बर्ड, रादर हम देखते हैं कि इट्स अ फ्लाइंग वन, सो इट इज हैज अ मोशन, इट इज इन मूविंग फॉर्म. दूसरा हम उसकी फॉर्म देखते हैं है किस तरह, फिर उसकी डेप्थ भी देखते हैं कि ये कितनी मोटी छोटी और वगैरह वगैरह है, फिर उसके कलर्स भी देखते हैं. So ये processing if we refer back to the dual track mind, तो ये हम parallel processing हो रही है कि consciously तो हम ये देख रहे हैं कि this is a bird which is flying, लेकिन जो हमारी subconscious है, जो low track है, वहाँ पे हम इसकी motion, form और depth और colors को भी process कर रहे होते हैं. This is again another information, another way to tell you कि how visual information processing simply visual information कैसे process होती है. For example, we saw a tiger. ठीक है जी, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है this is a tiger or something else. So पहले ये होता है कि रेटिना में जो rods और cones हैं वो वहाँ पे ये light वेव्स इस पे टकराते हैं. टकराने के बाद ये हमारे रेटिना में आते हैं. रेटिना में एक पिक्चर बनती है. रॉड्स और कॉन्स जो हैं उनको डीकम्पोज करके ब्रेन डिटेक्टर सेल्स तक लेके जाते हैं. इसकी एजेस, लाइंस, एंगल्स देखे जाते हैं. पैरेलल प्रोसेसिंग होती है. साथ में जो इसके इंफॉर्मेशन गैदरिंग है जो प्रीवियसली हमारे साथ कंपोज्ड हैं वो भी पड़ी हुई है. उसके साथ इसकी कंपेयरिंग शुरू हो जाती है. Or at the end we recognize that what the image is all about.
इट्स एन एनिमल, 4 फुट एनिमल जिसे हम कहते हैं, चार पाया जिसे हम कहते हैं. Brain interprets the constructed image based on information from stored image that it's a tiger. So इस तरह विजुअल प्रोसेसिंग होती है कि पहले सीन देखा जाता है, देखने के बाद रॉड्स और कॉन्स उनको की वजह से बाइपोलर सेल एक्टिवेट होता है, बाइपोलर सेल की वजह से गैंग्लियन सेल्स होते हैं, वहां से थैलेमस में आता है, थैलेमस में विजुअल कॉर्टेक्स में आता है, और विजुअल कॉर्टेक्स के साथ ब्रेन के जो अदर मेमोरी से रिलेटेड रीजन्स है वो फंक्शनिंग शुरू कर देते हैं कि भाई जो आने वाला जो बॉटम अप अप्रोच से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, टॉप डाउन अप्रोच से हम उसको देख रहे हैं कि भाई ये चीज़ है क्या, हम उसको देखते हैं, हम उसको प्रोसेस करते हैं कि व्हाट दिस थिंग इज ऑल अबाउट. इसके साथ फिर कलर विजन, ट्राई क्रोमेटिक थ्योरी जिसे हम कहते हैं कि जितने कलर्स हमें नजर आते हैं, दीज आर एक्चुअली combination of 3 colors. This is what we call कि जी रेड, ग्रीन एंड ब्लू. और ये थ्योरी कहती है कि हमारे जो रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स जो कॉन्स हैं वो 3 तरह के होते हैं, रेड और ग्रीन ब्लू. रेड ग्रीन ब्लू जो है वो जब हमें कोई लाइट सेंसेशन होती है तो जितनी उसकी फ्रिक्वेंसी और कितनी उसकी इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, वो सारी चीज़ें अपने कंसर्न RBG लेवल को एक्टिवेट करते हैं. एंड यू कैन सी कि हाउ मच वेरिएशन of colors we can have. 256 into 256 into 256. So 1,67,67,216 different colors जो हैं वो हम देख सकते हैं. But there are people who have some issues in their cons. रेड कॉन्स में या ग्रीन कॉन्स में उनके इश्यूज होते हैं जिनको हम कलर ब्लाइंड कहते हैं. कलर ब्लाइंड वो लोग होते हैं जो कि कुछ कलर्स में, रेड और ग्रीन के कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, रेड को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ग्रीन से, और thus have trouble making so many the numbers to the right. यहाँ पे दो छोटे छोटे स्पेयर्स नजर आ रहे हैं जहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं और इन डिफरेंट कलर्स के बीचों बीच एक नंबर लिखा हुआ है. So those who are colorblind will not be able to read those colors. For example, in the first one there is the number written is 45. In the second one there is 74. So those who are colorblind, who cannot differentiate red from the green, cannot read these numbers. Opponent process theory refers to the neural process of. इसके मुकाबले में अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी कहती है कि जी हम जो प्रोसेसिंग करते हैं, परसेप्शन करते हैं, ये अपोजिट वे में करते हैं. फॉर एग्जांपल वाइट टू ब्लैक, येलो टू ब्लू एंड रेड टू ग्रीन. सो यहाँ इसकी वजह से हमारे जो कलर सेंसेशन है वो होती है. बट द मोस्ट डिबेटेड एंड द मोस्ट एक्सेप्टेड वन इज द ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी. ट्राइक्रोमेटिक मीन 3 कलर थ्योरी जो है वो बेसिक कलर्स की थ्योरी है, वो हमें हमारे पास है. So that was all for today's lecture. We have discussed that what is perceptual set and how visual stimulus is being perceived and how we give it to meaning. In next lecture, we will be discussing other sensation and other processing of the word. Sensation and processing पे हमारी discussion जारी रहेगी. Till next lecture, Allah.